morning students. Today we are going to discuss numericals based on thermal properties of metal. I have given some formulas. Q is equal to Ms delta T. S is the specific heat, amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance per degree centigrade rise in temperature. Then we have thermal capacity, which is product of mass and specific heat of the body. Water equivalent, which is numerically equal to thermal capacity, this is equal to Ms. L is latent heat. Latent heat is the heat which is required to raise the to convert from one state into another, unit mass of substance from one state into another. Q is equal to Ml. और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, दिस इज फ्रॉम कैलोरीमेट्री मेथड ऑफ मिक्सचर्स. Heat gained by water is equal to heat lost by substance whose specific heat is to be determined. This is M1 C1 T minus T1 M2 C2 T2 minus T1. C1 specific heat है, S1 भी लिख सकते हो, S2 भी लिख सकते हो. C1 आप specific heat का कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है. SP CP whatever you like. इसके बाद आता है हमारा, let us start with the this first numerical. Let us start with the first numerical, that is calculate the quantity of heat required to raise the temperature of 150 gram of iron from 30 degree to 35 degree centigrade. Specific heat of iron is 0.11 calorie per gram per degree centigrade. Calculate the quantity of heat required to raise the temperature of 150 gram. M is equal to 150 gram of iron from 30 degree to 35 degree centigrade. तो raising temperature कितना हो गया? 5 degree centigrade. फिर उसके बाद है specific heat of iron. S is equal to 0.11 calorie per gram per degree centigrade. Delta Q M S delta Q. फर्स्ट फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर दीजिए. 150 0.11 5 ये मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो, आपके पास आ जाएगा 82.5 कैलोरीज. 82.5 कैलोरीज. दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फर्स्ट फॉर्मूला. इसके बाद आता है इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. 120 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू 30 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द राइजिंग टेम्परेचर. वाटर है, ठीक है. सेम फॉर्मूला विल बी यूजिंग, लेकिन इसमें हमने क्या किया, हमें चाहिए क्या, डेल्टा टी. तो डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू एस. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपके पास क्या आ गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना है, 120 कैलोरी. मास कितना गिवन है, 30 ग्राम ऑफ वाटर. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज दिस. तो आपके पास आ गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर. 4 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है. Now this is these two questions were based on this formula. इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है the mass of a copper calorimeter is 80 grams and its specific heat is 4.2 into 10⁻² joules per kilogram per degree centigrade. Calculate its thermal capacity. Thermal capacity का फॉर्मूला जो है वो है thermal capacity is equal to Ms. Thermal capacity is equal to Ms. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, we have thermal capacity is equal to Ms. मास कितना बेटा, 80 ग्राम. 80 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम की हुई है, जूल्स पर किलोग्राम. तो इसको हम कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 1000. करेक्ट, फाइन. और इसके बाद आता है हमारा ये
0.08 किलोग्राम। इसके बाद है हमारा स्पेसिफिक हीट जो है 4.2 इंटू 10⁻²² जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये है मास, ये है एस। तो थर्मल कैपेसिटी कितना आ गया? थर्मल कैपेसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.08 इंटू 4.2 इंटू 10⁻², और ये आ गया आपका 33.6 जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। 33.6 जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। फाइन। तो दिस इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। इसके बाद एक और क्वेश्चन, वाटर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला, what is water equivalent of a body which gives out 2500 calorie of heat when it is cooled from 80 degree centigrade to 30 degree centigrade? Water equivalent of a body, जैसे मैंने कहा कि this is numerically equal to ms, product of mass and specific heat of the body. तो डेल्टा क्यू गिवन है, what is water which gives out 2500 calorie of heat. Delta Q is 2500 calorie when it is cooled from 80 to 30 degree centigrade, मतलब falling temperature. तो डेल्टा T is equal to 80 minus 30, ये आ गया आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेल्टा Q क्या है? W इंटू डेल्टा T। यार बताया आपको, समझाया था मैंने, AMS डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, M की जगह हमने वाटर इक्विवेलेंट, तो ये आ गया डेल्टा T, ये चीज आ गई ना। तो यहाँ पे W डेल्टा T, तो W कितना आ गया? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा 2500 कैलोरी डिवाइड ये आ गया 50 grams. 50 grams. This is water equivalent of the body which gives out 2500 calories of heat when it cools down from 80 to 30 degrees centigrade. So this was based on this formula, water equivalent. अच्छा, इसके बाद हम लेटेंट हीट का क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम करते हैं लेटेंट हीट का क्वेश्चन। Find the quantity of heat required to change the 500 gram of water at 0 degree centigrade into ice at the same temperature. जब हमने वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, ये मैंने आपको आगे भी बताया था, दैट इज एक थ्योरी पार्ट में बताया था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम। अब क्वेश्चन में क्या है, गिवन क्या है? M is 500 ग्राम, L is 80 कैलोरी पर ग्राम। डेल्टा Q ml 500 इंटू 80, ये आ गया 40,000 calories. This much heat is required to convert 500 gram of water at 0 degree centigrade into ice at the same temperature. Conversion हुआ, change state हुआ, and L is the latent heat which is required to change its state. तो ये हमारा numerical based on this. Fine. अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। Find the quantity of heat required to change 5 kilogram of water at 100 degrees centigrade
centigrade into steam. Latent heat of vaporization of water is 540 calorie per gram. Conversion from liquid to vapors. Conversion from water into steam, that is vaporization. और इस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन. और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम. ये भी मैंने वैल्यू बताई थी अपने पिछले लेक्चर में. तो हमारे पास अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो क्वांटिटीज गिवन है वो हम लिखते हैं. क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 5 किलोग्राम ऑफ वाटर. मास है 5 किलोग्राम और इसको अगर हम ग्राम में चेंज करें तो ये आ जाएगा 5000 ग्राम. एल कितना है? 540 कैलोरी पर ग्राम. क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम है, इसलिए मैंने इसको किलोग्राम से ग्राम में कर दिया. तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दो दोनों को तो आपके पास आ जाएगा 2.7 into 10 to the power 6 calories. 2.7 into 10 to the power 6 calories. ठीक, क्लियर? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यही फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं. These formulas are being used. ठीक है. स्टार्टिंग एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमने शुरू किया 40 डिग्री सेंटीग्रेड से. क्वेश्चन ध्यान से सुनो. हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड to heat 0.5 kilogram of aluminium. हमें उसको गर्म करना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्यूमिनियम to its melting point 660 डिग्री सेंटीग्रेड. 660 पे उसका मेल्टिंग पॉइंट है. and then convert it all to the liquid. फिर कन्वर्जन करनी है into another state. पहले उसको टेम्परेचर रेज करना है 40 to 660 और उसके बाद उसका कन्वर्जन करना है फ्रॉम दैट सॉलिड टू लिक्विड. ओके. स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज 0.22 कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. लेटेंट हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज 76.8 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. मतलब दो प्रोसेसेस होंगे, दो प्रोसेसिंग होंगी. एक उसके टेम्परेचर को 40 से हमने लेके आना है 660 तक. टेम्परेचर रेज किया 40 से 660 और उसके बाद मतलब हमने यूज किया Q is equal to ms delta T और उसके बाद कन्वर्जन हुआ फ्रॉम दैट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू कंप्लीटली कन्वर्जन इनटू लिक्विड. मींस वी विल बी यूजिंग लेटेंट हीट ML यूज करेंगे. तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे उतनी टोटल हीट चाहिए फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिनियम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू लिक्विड. ठीक है. अब गिवन क्या है, वैल्यूज जो क्वांटिटीज है जो गिवन है सबसे पहले हम लिखते हैं क्या है और हमें क्या निकालना है. मैंने समझा तो दिया था, अब हम लिखेंगे. M is equal to 0.5 किलोग्राम. डेल्टा T is equal to 660 minus 40 620 डिग्री सेंटीग्रेड. C is equal to 0.22 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. L is equal to 76.8 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. डेल्टा Q is equal. अब मैंने जैसे बताया कि दो चीजें चाहिए. पहले उसको टेम्परेचर को रेज करना है अप टू 660 और उसके बाद कन्वर्जन होगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो आपके पास डेल्टा Q जो है दैट इज ms डेल्टा T प्लस ml. मास कितना है 0.5. स्पेसिफिक हीट कितनी है गिवन है 0.22 और 660 माइनस 40 कितना आ गया डेल्टा T 620 प्लस m 0.5 और लेटेंट हीट कितना है. लेटेंट हीट इज गिवन 76.8. मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया. सारा समझा दिया मैंने.
कैलकुलेशन कर सकते हो 106.6 किलो कैलोरीज। ये मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग 106.6 किलो कैलोरीज। इतनी हीट चाहिए, इतनी हीट रिक्वायर्ड है। क्लियर? अच्छा, और एक इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम। पहले जो पानी है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और इसको स्टीम में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको गर्म करना पड़ेगा अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद कन्वर्शन होगा। इसका मतलब दो चीजें होंगी, ms डेल्टा टी प्लस ml। डेल्टा टी विल बी राइजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 30 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल वैसा ही करना है, बिल्कुल वैसा ही करना है। अब कैसा क्या है इसका, व्हाट इज देयर, m इज 500 ग्राम, डेल्टा टी इज 100 minus 30 70 डिग्री सेंटीग्रेड, L इज 540 कैलोरी पर ग्राम, C इज 1 कैलोरी स्पेसिफिक, S क्योंकि हमने S हम यूज करते हैं स्पेसिफिक के लिए, सो लेट इट बी S 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है स्पेसिफिक हीट। अब आपके पास आ गया डेल्टा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T प्लस ml। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही है, 500 इंटू s इंटू 70 प्लस 500 इंटू 540 वैल्यूज पुट की, तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, तो आपके पास रिजल्ट आता है 3.05 इंटू 10 raised to power 5 कैलोरीज। 3.05 इंटू 10 raised to power 5 कैलोरीज। क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन करें, इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके फाइन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू राइट दिस, आई विल स्पीक द पैटर्न फर्स्ट एंड देन आई विल स्पीक ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड till it is converted into water at 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो आइस है पहले वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और उसके बाद इसको हीट किया, कब तक, जब तक इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड। क्या है, रेटेड हीट ऑफ आइस जो है दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम and specific heat of ice is 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले बेटे इसको हमने -10 से 0 तक लेके आना है। पहले तो उसको हीट देंगे, -10 से 0 तक लेके आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको अब मेल्ट करना है इसको, तो ml चाहिए, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो ml करेंगे। और फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, टिल इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसको रेज करना है, टेम्परेचर को अगेन यू हैव टू रेज अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 बार आपका ये ms डेल्टा टी आएगा और 1 बार ml आएगा। मैं क्वेश्चन को करके दिखाती हूँ। मास जो है 100 ग्राम, L है 80 कैलोरी पर ग्राम, heat of fusion, latent heat of ice, then specific heat of ice जो है वो है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। S2 is specific heat of water that is 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले हमें क्या करना है, हीट
required to convert from -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस से हमें 0 तक पहुंचना है। तो आपके पास क्या आ गया, Q1 is equal to MS1 delta T, this is 100 into 0.5 into 10, तो ये आपके पास आ गया 500 कैलोरीज। फिर उसके बाद क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम वन स्टेज इनटू अनदर, तो Q2 is equal to ml, तो आपके पास आ गया 100 into 80, ये आ गया 8000 कैलोरीज। तीसरा, अब 0 से इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है, तो आपके पास आ गया Q3, ये आ गया MS2, अब वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लेते हैं। मास कितना है हमारा 100 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, और कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है 0 से अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया आपका 4000 कैलोरी। तो आपके पास टोटल कितना आ गया, Q1, Q2, Q3, this 500 plus 8000 plus 4000, फाइन, ओके। ये आ जाता है हमारा 12500 कैलोरीज, 500, 8000, 4000, yes, it is correct। अच्छा, एक now these are the questions based on latent heat and specific heat, ना, this is clear। ये भी खुद करके देखो, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हम उसमें भी कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा, क्वेश्चंस ऑनलाइन क्लास में इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा एक क्वेश्चन करते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर में। मेथड ऑफ मिक्सचर जो है, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। A 50 gram piece of metal at 95 degree centigrade is dropped into 250 gram of water at 17 degree centigrade and warms it to 19.4 degree centigrade. What is the specific heat of metal? Okay? Heat gained by water is equal to heat lost by the substance. ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। गिवन क्या है, M1 mass of water is 250 gram, temperature of water is T1 17 डिग्री सेंटीग्रेड, और S1 अगर आपको स्पेसिफिक हीट हम S1 लेते हैं, लेट इट बी S1 S2 S लेते हैं ना, हमने S शुरू से S लिया है, so I am taking S1 and S2। S1 is 1 कैलोरी per gram per degree centigrade। स्पेसिफिक मास ऑफ द सब्सटेंस जिसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है, दैट इज 50 ग्राम। इसका जो टेम्परेचर है वो है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, और कॉमन टेम्परेचर जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो है हमारा 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड। वैल्यूज पुट करते हैं, 250 ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, T कितना है 19.4, वाटर का टेम्परेचर कितना है 7। हीट गेन बाय वाटर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट हमने निकालनी है, T2 कितना है हमारा 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 माइनस T कितना है 19.4। क्लियर? अगर जो सब्सटेंस है वो 95 डिग्री पे है, जब उसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो हीट विल बी गेन्ड बाय वाटर एंड हीट विल बी लॉस्ट बाय substance whose specific heat is to be determined. If there is no loss of heat from that apparatus, then heat gained by water is equal to heat lost by the substance. तो आपके पास इसको सॉल्व करके you will get the values, ये S2 आ जाएगा आपका
0.158 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन। ये मैं रख कर रही हूँ। दिस इज लास्ट क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। दिस इज आल्सो फ्रॉम calorimetry. In an experiment, 200 gram of a metal piece at 150 degrees centigrade is dropped in a copper calorimeter containing 150 gram of water at 27 degrees centigrade. The water equivalent of calorimeter is 25 gram. इसमें हम टोटल मास लेंगे वाटर का प्लस कैलोरीमीटर का। द फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। सेम उसी तरह वही चीज है कि हमने सब्सटेंस को कैलोरीमीटर जिसमें कि वाटर है उसमें ऐड किया एंड हाउ हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर इज इक्वल टू हीट लॉस बाय द सब्सटेंस। तो ये आ गया आपका, मान लीजिए वाटर का जो मास है गिवन है m1 इज इक्वल टू 150 ग्राम, स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, W इज इक्वल टू 25 ग्राम। इसी तरह M2 इज इक्वल टू मास 200 ग्राम, सब्सटेंस जिसका की स्पेसिफिक हीट निकालना है। T2 इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड और जो फाइनल टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने S2 निकालना है। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दिस इज M1 इज C। इसमें बेटे हमने ये M1 की बजाय हम कंसीडर करेंगे M1 प्लस W, क्योंकि हमने इसमें कहा है कि सब्सटेंस इज टू बी पुट इन द कैलोरीमीटर व्हिच इज हैविंग वाटर, तो वी आर टू कंसीडर कैलोरीमीटर का हम वाटर इक्विवेलेंट लेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे टोटल मास। क्लियर? तो आपके पास जो स्पेसिफिक हीट आएगी यू विल हैव M2 S2 T2 minus T. This is equal to M1 S1 T minus T. S2 निकालना है हमें, T2 minus S2 निकालना है ना, इसको मास M1 वाटर का 150, स्पेसिफिक हीट वाटर की 1, T minus T1 तो ये आ जाएगा 40 T और T1 टेम्परेचर वाटर -20। इसके बाद यहाँ पे बेटे ये जो है M2 कितना है, व्हाट इज M2 200 ग्राम, T2 150 माइनस T कितना है 40। अब ये जो है ना M1 इसकी जगह हमने वाटर इक्विवेलेंट भी ऐड करना है। M1 की जगह आ जाएगा हमारा M1 प्लस W मीन्स 150 प्लस 25, 150 प्लस 25 तो हमारे पास क्या आ गया 150 प्लस 25 140 माइनस 27 200 इंटू 150 माइनस 40। ये सारी कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, आपके पास जो कैलकुलेट करके आएगा 103 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, दीज आर द न्यूमेरिकल बेटे खुद करके देखो, सारे न्यूमेरिकल जो मैंने आपको करवाए हैं। जब आप स्टेटमेंट सुनते हो अच्छे से समझ लो सारे क्वेश्चंस और फिर उसके बाद आप खुद करके देखो, प्रैक्टिस करो, तभी क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह के और भी न्यूमेरिकल्स पूछने से देखो और करो। ठीक है, ओके फाइन। और जो डाउट्स होते हैं देन दोज डिस्कस
Next time we can start with a new topic, that is thermal conductivity. We'll start with a new topic.